بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں میاں نذیر احمد۔ راستے اتنے دشوار ہو چکے ہیں کہ چلنا ہی بہت مشکل ہے۔ میں اپنے دوستوں سے پروگرام باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے اتنی درخواست کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو ضرور دبائیں، اس لیے کہ آپ کے پاس اچھی باتیں اور معلومات پہنچتی رہیں۔ پہلے تو میں معذرت سے کہ زبان کے اندر تھوڑا ایک شالہ سے میرے بنا ہوا ہے، تو زبان ذرا کچھ میری صحیح نہیں چل رہی، الفاظ صحیح کہہ نہیں پا رہے۔ دوستو، ہمارے حکمرانوں نے اتنے دشوار راستے کر دیے ہیں ہمارے لیے کہ چلنا ہی بہت محال ہے۔ لیکن میں آج ایک جو پروگرام کر رہا ہوں، میں اپنے حکمرانوں کو اور اداروں کو ایک بات میں جو آج کہنا چاہتا ہوں۔ آج 2023 اور یہ مارچ کا مہینہ ہے، اور مارچ کی آج 11 تاریخ ہے اور ہفتے کا دن ہے۔ تو میرا نام میاں نذیر احمد میرا نام ہے کہ میں اپنے اداروں کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اپنے حکمرانوں کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ خدارا کبھی ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، پھر کیا کہتے ہیں، جب چڑیاں چگیاں کھیت تو کیا پچھتانا، پھر پچھتانے کے علاوہ کوئی بات باقی نہیں بچتی۔ میں سب کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے اپنے قبلے درست کر لو۔ شہداد کی طرف نہ دیکھو کہ اس نے جنت کیسے بنائی تھی، فرعون کی طرف نہ دیکھو اس نے خدائی دعویٰ کیسے کیا تھا۔ ایسے لوگوں کی طرف نہ دیکھو، صرف اتنا دیکھو کہ حضرت عمر نے ترازو کیسے پکڑا، انصاف کیسے کیا تھا، عدل کیسے قائم کیا تھا۔ ارے مٹ گئے بے نامیوں کے نام کیسے کیسے، یہ زمین کھا گئی انسان کیسے کیسے۔ اپنے قبلے درست کر لو۔ جو میں بات کہنی چاہتا ہوں، میں پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں میں سب کو کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے حکمرانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ پاکستان کے اندر ایک طالبان کی جماعت تیار ہو جائے، یا پاکستان کی جماعت خدا نہ خواستہ پاکستان کے اندر ہوگی، طالبان کی اگر کوئی جماعت تیار ہو گئی تو پھر ادارے بھی ان کا سامنا نہیں کر پائیں گے، ہمارے حکمران بھی اس کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ یہ ادارے ہماری قوم کی ملکیت ہے، یہ کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ ہمارے ادارے ہیں، ہمیں یہ جان سے پیارے ہیں، یہ ہمارے ملک کی پہچان ہے ہمارے ادارے جو ہیں۔ اگر ان اداروں کے اندر چند لوگ غلط آتے ہیں تو ہم ان کو غلط لوگوں کو اپنے اداروں کو بدنام نہیں کرنے دیں گے۔ کسی ادارے کے اندر بھی موجودہ دور میں کسی ادارے کے اندر بھی کوئی عدل و انصاف نہیں ہے، کون سا ادارہ جو ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے۔ میں سب اداروں کو کہہ رہا ہوں، کوئی آدمی مجھے کسی ایک ادارے کا نام بتائے کہ اس ادارے کے اندر کام جو ہے وہ عدل و انصاف سے ہو رہا ہے، ایمانداری سے ہو رہا ہے، تو میں اس ادارے کی وہ نشاندہی کر کے دوں گا وہ کہاں پہ وہ ادارہ غلط ہے۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتی، کتنے کو تم لوگ ظلم کرو گے، کتنے کو تم لوگوں کو مرواؤ گے۔ تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے وہ خالق ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ خالق کائنات کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، تو اسی طرح وہ خالق جو ہے پوری کائنات کو تباہ برباد کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اسی طرح پاکستانی عوام کو اللہ تعالیٰ نے اگر اتنی ہمت دی ہے، پاکستانی عوام اپنے اداروں کو بناتی ہے، اپنے حکمرانوں کو بناتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر عوام کو اتنی طاقت دی ہوتی ہے کہ عوام جو ہے اپنے اداروں کو بھی ختم کر سکتی ہے، اپنے حکمرانوں کو بھی مٹا سکتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، عدل و انصاف کرو۔ ارے یہاں پہ جو لوگ کھا کے ملک کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں کو پکڑ لیا تو ہمارے ادارے کی توہین ہے۔ ایک وہ بابا آئے تھے ڈیم بنانے والے، ہمارے چیف ڈسٹرکٹ، وہ پاکستان کا پیسہ لوٹ کر کھا کر چلے گئے، کسی نے نہیں پوچھا کیوں، وہ کسی کے باپ کا پیسہ ہے۔ یہ حق کی بات کرو تو گریبان سے پکڑتے ہو تم۔
60 70 लाख तुम लोगों ने यानी कि जद्दों को तुम लोगों ने तनख्वाहें दी हुई हैं। ये गरीब मुल्क है ये, इस मुल्क को सब लूट कर खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे मुल्क के जितने जज साहबान हैं उनको कितनी अय्याशी मिली हुई है, आगे पीछे जोकोट और बॉडी गार्ड सब कुछ। क्या वो हम कौन सा हमें इंसाफ देते हैं? हमारे केसों को हमारी उम्रें बीत जाती हैं, हमारी अगर हमारी नस्लें यानी कि चली जाती हैं, हमारे हमें इंसाफ नहीं मिलते। ये कौन सा ये धुआनी मुकदमा है, ये फलाना मुकदमा है, कौन सा इंसाफ देते हो यार? बहुत हो चुकी मुल्क के अंदर, क्या करोगे तुम? क्या समझते हो? हमारे मुल्क को 2 लोगों ने तबाह किया है। मैं वाज़ह तौर पे कहता हूँ 2 लोगों ने, एक सियासतदानों ने तो एक हमारी फौज ने। फिर कहते हैं जी फौज के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? फौज मेरी अपनी है, मेरा अदारा है, मैं अपनों से बात करने का हक रखता हूँ, वो मेरे अपने हैं। अदब की जगह पे मैं बात करता हूँ, बात करने का तो मैं हक रखता हूँ। क्या नहीं जानते क्या हुआ 70 के अंदर 71 के अंदर क्या हुआ है? पाकिस्तान को किसने तोड़ा है? कौन कौन शामिल था? एक हमारा सियासतदान शामिल था जिसको नाम जुल्फ़िकार भुट्टो है। लोग कहते हैं बड़ा भुट्टो ने बड़ा कारनामा किया है, सबसे बकवास ही भुट्टो ने की थी। हमारा जनरल जैया ने क्यों ऐसा किया था? क्यों मुजीब को हुकूमत नहीं दी थी? तो पाकिस्तान के टुकड़े करने में दोनों लोगों का किरदार था, एक सियासतदान था, एक फौज का सरबराह था। मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, ना मेरी कोई तलीम है, ना मैं कोई सियासतदान, मैं तो एक आम सा आदमी हूँ। लेकिन जितनी बात मुझे मुझे समझ में आती मैं वो बात करता रहूँगा। चाहे मुझे उठा के ले जाओ, मुझे पकड़ के नंगा कर दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन हक़ की बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। हम हक़ के ऊपर जिएंगे, हक़ के ऊपर ही हम मरेंगे इंशाल्लाह। कोई भी एक भी तो कोई अदारा बताओ यार जो अपने इंसाफ से काम करता हो। ये फौज के पुलिस के अदारे को देख लो, वो पुलिस का अदारा जो है वो सिपाही से लेके एसएचओ तक, वो उस अदारे को अपने बाप की मिल्कियत समझता है। वहाँ चले जाओ, उनको बात करने की तमीज़ तक नहीं होती। जो जालिम होता है उसको कुर्सी पे बिठाया होता है, जो गरीब मजलूम होता है जिसके पीछे नहीं होता वो ज़ीले व ख्वार हो रहा होता है। कभी उनकी खवातीन आके वहाँ ऐसा जो कब जाके पाँव में बैठी होती है, ये हमें माफ़ कर दें, कभी वो तरले मिन्नतें ले रही होती है। ये क्या का इंसाफ है यार? हज़रत उमर जब अपने आप को पेश कर सकते, तुम्हारी क्या औकात है? तुम लोग क्यों नहीं अपने आप को पेश कर सकते? ये फलाना फौजी जरनैल था जी हमारे अदारे की तौहीन है, इसका मतलब हमारे मुल्क को कोई भी चाट के चला जाए उसको पूछो ना। मुल्क को तबाह करके रखा हुआ है। मारो एक एक कर को मार दो, यहाँ नहीं है तो वहाँ जाकर तो हमें अदल मिलेगा। ये हमारे एक मोहतरम आए थे, हमने इससे बड़ी उम्मीदें लगाई थी। हमने बोला कि आए हैं अल्लाह भाई लोग हैं, कुरान सीने के अंदर है, लेकिन अभी तक हमें इनसे कोई ऐसा आंसर नहीं मिला। एक बदमाशों का टोला हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहता है हमेशा कि इसके अंदर पाकिस्तानी अवाम की अपनी भी गलतियाँ हैं। क्यों बार बार चोरों डाकुओं को लाते हो? क्यों एक औरत के पीछे गुलामों के तो तुम लोग हाथ बांध कर तुम लोग खड़े हो? तुम्हारी मर्दानगी कहाँ गई? तुम्हें शर्म और गैरत क्यों नहीं आती? एक वो पहले मुहतरमा थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा, उसके पीछे तुम लोग हाथ जोड़ कर तुम खड़े हुए थे। कहाँ इस्लाम के अंदर हुक्मरानी है औरत की? गुबार नवाज ये बैठा हुआ है डाकुओं का बाप, उसने शिबकली को, ये उसने चिलेड़ को भेज दिया पाकिस्तानी कौम को पागल जाके बनाओ। यहाँ जो उसका दिल करता है वो बकवास करती है, उल्टी सीधी बात कभी कोई दीन के बारे में करती। मैं अपने अदालतों से मैं नाम लेकर मैं मुखातब हूँ अपने जज साहबान से। सिर्फ इतना बताया जाए कि सिर्फ इमरान खान एक मोहतरमा जज साहब को यही कहा था कि हम आपको इंसाफ की कटाई में खड़ा करें। गाली बकी थी, क्या क्या आपने दफा लगाई उसके ऊपर। अब ये कि चोर की बच्ची मरियम खुल्म खुल्ला इसने क्या क्या बकवास की, क्या था उनकी तस्वीरें चलाई, क्या खेड़ा उसका आप लोगों ने? मतलब वो इंसाफ चाहिए। हर अदारा अपनी जैसी कर रहा है, अदारों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो तो पाकिस्तान को लूट लूट कर वो तो खा रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, उनको तनख्वाहें मिल जानी है। किसी गरीब के घर में चूल्हा जले ना जले, अगर कोई माँ अपने बच्चे के दूध के लिए अपना जिसे बेचती है बेचती रहे, इनको क्या है बगैरतों को? ये तो खाते रहे मुल्क को, लूटते रहे, इनको कोई परवाह नहीं मुल्क की। आए दिन इतनी महंगाई कर कर के पाकिस्तानी अवाम, गरीब अवाम का तुम लोगों ने वो असर कर दिया कि पाकिस्तानी अवाम जो है अपने बच्चों समेत खुद खुशियाँ कर रही है। लेकिन तुम लोग इतने ढीठ बन चुके, तुम लोगों को ये सब नहीं होता। असाक डार वो चोर की औलाद 5 साल तक बाहर रहा, अदलिया को दरकार था, वहाँ पे हाजिर नहीं हुआ। ये चिलेड़ की बच्ची मरियम कहती है जी इमरान खान पेश नहीं होता, आकर आराम से बैठ गए। यहाँ पाकिस्तान का जहाज़ क्यों उनको लेने के लिए नवाब के बच्चे आ रहे हैं, आते हर कुर्सी पे बिठा दिया गया, किसी ने नहीं पूछा क्यों?
हद होती है यार एक। गरीब लोगों के अंदर तुम लोग जाकर तो देखो, अपने एसी वाले कमरे छोड़कर बाहर निकल कर तो देखो। जब कुर्सी पे आते हो तुम लोगों को दो चार बॉडी गार्ड साथ में पुलिस वाले मिल जाते हैं, वो आगे भी तुम्हारी बात करते हैं, पीछे भी तुम्हारी बात करते हैं। तुम आवाम की क्या बात करोगे? तुम्हें तो अपनी जिंदगी का खतरा रहता है हर वक्त। अदालतों में अगर किस्ती में चले जाओ तो कहीं से जज साहब तशरीफ आ रहे होते हैं, 10-12 सिक्योरिटी वाले आगे पीछे छोड़ दो रास्ता खाली कर दो, इधर हो यार। ये क्या तमाशा है यार, अजीब बात है। हमें तो कोई समझ नहीं आती, फिर तहीनें लगा दी जाती हैं। कोई हम पाकिस्तानी हैं कि हम बांग्लादेश से आए उठकर, जब हम अफगानिस्तान से आए हैं, ये हमारा हक है। 1947 में हमारे बुजुर्ग यहाँ पर लूट लटा कर आए, सब कुछ तबाह करके आए अपने मुल्क के लिए। हम ना बोलेंगे तो कौन आगे यहाँ पे बोलेगा? मैं दो अल्फाज दोबारा फिर रिपीट करता है कि ये ना हो कि इस मुल्क के अंदर कोई जमात तालिबान की शक्ल में वजूद में आ जाए, तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे। हमें तो इनकी तरफ देख देख के हमें तो रोना आता है, दिल करता है चीख चीख कर रोए। जब बेबस आदमी होता है वो सिर्फ रोने के अलावा उसके पास कुछ नहीं होता। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, मैंने खुद औरतों को देखा है, मेरे साथ खुद एक दो औरतों का पाला पड़ा है, वो अपने घर का चूल्हा चलाने के लिए ज़िनाकारी करते, मैंने उनको देखा औरतों को। बगैर तो हज़रत उमर कहता है कि मेरे दौर में अगर कुत्ता भी मर गया तो मैं जवाबदार हूँ। तुम्हारे दौर में औरतें जो हैं बच्चों को दूध पिलाने के लिए ज़िनाकारी कर रही हैं, उसका कौन जवाबदार है? करोड़ों रुपया बिला वजह पानी में बहा देते हो, तुम्हारे पड़ोस में गरीब आदमी उसके घर रोटी नहीं होती, उसका कौन जवाबदार है? आओ पकड़ो मुझे भी गिरे मान से, मैं तुम्हारे खिलाफ ही बोल रहा हूँ, पकड़ो मुझे भी नंगा कर दो आगे। ना तो को मैं कोई सियासतदान हूँ, ना को मैं लिखा पढ़ा हूँ, ना होगी मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, मैं तो बोलूँगा। लोगों की उम्रें भी जाती हैं, लोग सलील होते रहते हैं, लोग सिस्कियाँ ले लेके अपनी ज़िंदगी ऐसी पूरी करके चले जाएं, तुम लोगों की यशकी नहीं मिलती। कितने लोग हमारे मुल्क को लूट कर चले गए, क्यों किसी ने नहीं पूछा? क्यों पूछेंगे? तो कहते हैं जब कुत्ती चोरों के साथ मिल जाती है तो चोरी करनी आसान होती है, जब सब एक बने हुए तो कैसे पूछेंगे? हमारे फौज के अफसर जो हैं कोई चंद लोग वो मुल्क को लूट कर खा कर तबाह कर चलेगा, किसी ने नहीं पूछा। हमारे जज साहब के आए उनके मुल्क के अंदर क्या से क्या करके चले गए, किसी ने नहीं पूछा। बताया कभी किसी को वो डम का सारा पैसा कहाँ गया, डम के लिए पैसा इकट्ठा किया था? कोई मेरे जैसे गरीब आदमी 10 रुपये का मैसेज कर रहा है अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, कोई 20 रुपये का, कोई 50 रुपये का कर रहा है, वो कब सारा पैसा कहाँ गया आवाम को बताया? फिर आवाम का खून छोड़ लिया जाता है। शर्म आती है यार ऐसे हुक्मरानों से। आखिर में मैं तो ये कहूँगा, या अल्लाह हमें कोई सच्चा हुक्मरान दे। लोग कहते हैं ना कि जैसी अवाम तो वैसे हुक्मरान, इस बात को मैं तस्लीम करता हूँ, है मसला ये, लेकिन जैसे तुम समझते हो ऐसे भी नहीं है। अगर एक आदमी गंदा होता है ना, ये हदीस है मेरे नबी की, एक आदमी गंदा होता है ना, एक आदमी की वजह से पूरे मोहल्ले को सज़ा मिलती रहती है। अगर चंद आदमी गंदे हैं तो पूरे पाकिस्तानी अवाम को उनकी वजह से सज़ा मिल रही है। मेरी ज़िंदगी ने मुझसे अगर वफा की, मैं तो यूँ बोलता ही रहूँगा, तुम लोग जुल्म करते रहो। क्या क्या जुल्म नहीं किए? अभी वो शाह को क्या किया तुम लोगों ने? क्यों मारा उसको? शर्म नहीं आती बेशर्म लोगों? सूबे के अंदर कहाँ कहाँ से किन किन सूबों की पुलिस को बुला रहे हो तुम? डूब मरो अगर तुम्हारे अंदर ज़रा भी गैरत हो। हमारे मुल्क का तुम लोगों ने वो अशर कर दिया है। मेरे मुल्क का जो नाम है उसका तो मतलब समझते हो? नहीं, तुम लोगों को क्या पता मतलब क्या होता है। पाकिस्तान के मतलब क्या हो तुम महने समझ जाओ, तो तुम लोग कभी भी ऐसे ना करो। जो हक और सच की बात नहीं करता वो भी जालिमों के साथ बराबर है। ए लोगों, हक और सच की बात को करते रहना। मैं अपने प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ।
آنکھوں سے زبردستی آنسو اس لیے آتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس کس طرح سے لوگ بے بس ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔